Okay, let us start. Good morning, everyone. So, we have seen many things related to series data structure. Now, we are heading towards some of the functions that can be used in series data structure. So, there are two basic functions that are generally used. Those two functions are head and tail. Head function and tail function. Let me explain you what these two functions will do. As we already know, in MS Word we had two things like header and footer. So what they actually did, header was actually used to write on the topmost margin. If we want to write something on the topmost margin, so we were using the header. And if we want to write something in the bottom margin, so we used footer. Over here also there are two functions which are head function and tail function. Head function basically will be used to fetch n number of elements from the top, and tail function will be used to fetch n number of elements from the bottom. Now n depends on us. All right, n completely depends on us, how many number of elements from the top we want to access and how many elements from the bottom we want to access. So that depends completely on us. Like for example, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है O1, ठीक है, O1 नाम का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इस O1 ऑब्जेक्ट में से मुझे ऊपर के चार एलिमेंट्स एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा हेड फंक्शन एंड इनसाइड दिस आई विल राइट n, वैल्यू ऑफ n विल बी 4. जब मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर ऊपर के जो भी चार वैल्यूज होंगी, दोस फोर वैल्यूज विल बी माई आउटपुट. और अगर मुझे इसी के बॉटम से वैल्यूज निकालनी होती तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता, तो मैं यहाँ पर लिख देता टेल फंक्शन. All right, so tail function what will do, it will access values from the bottom से चार वैल्यूज वो एक्सेस करता. तो हमें हेड फंक्शन और टेल फंक्शन की डेफिनेशन पता होना चाहिए. मतलब हम नाम से तो बता सकते हैं कि हेड फंक्शन विल एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम द टॉप एंड टेल फंक्शन विल एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम द बॉटम. बट हमें ये भी बताना होता है कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज ये टॉप या बॉटम से एक्सेस करेगा. तो कितनी वैल्यूज एक्सेस करेगा, तो इट विल एक्सेस एन नंबर ऑफ वैल्यूज एंड n डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या वैल्यूज वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट अस सी with the syntax what they have provided us. So as you can see that the syntax for writing is like this. This is what we have to use for writing it. So we have to write the object name. So like I have an object O1, so I will write O1, and then the head function has to be written. So like dot head function. All right, similarly same goes for the same goes for the tail function as well. So for tail function what we will do, so for the tail function we will write the object name and dot tail. All right, so let us see some examples that we have with us. We are provided with some objects. The object which is given to us is OB7. As you can see, OB7 is our object, and on OB7 we will be using the head function. So you can see when we have used OB function without any values, all right, when we use head function without providing the value of n, so how many values will it put as an output, so it will provide 5 elements in the output. ये कब आएंगे 5 elements, when we are not providing the value of n. ठीक, but if we provide the value of n, so we can access any number of elements from the top or from the bottom. Alright, so let us see another example. So in the OB7 what they have done, in OB7 they have written head function for 7, n is equals to 7. When n is equals to 7 and the function that we have used is head, so what it will do, it will provide 7 elements from top. Is it clear?
इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है? ठीक है। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो 5 एलिमेंट्स विल बी अवर आउटपुट, एंड इफ वी प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ n टू बी एनी नंबर, सो दोज मैनी एलिमेंट्स विल बी accessed through the head and tail function. Same thing remains for the tail function as well. So आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, here also they have provided tail function, so here values have been 5, and if we provide the tail function and along with that we provide n is equals to 7, so we will be having 7 number of outputs from the bottom, क्योंकि ये tail function है, so tail function will be having the values from the bottom. Alright, so this is the tail function and head function. There are not many functions that have been used inside this Python series data structure, so we won't be getting into many things, but only two functions I believe we have to know about the series data structure. तो कभी भी ऐसा एग्जाम में if we are asked a question that explain some of the functions that we know about सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, तो हमें बताना पड़ेगा कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में देर आर टू फंक्शंस दैट वी कैन यूज. दोज टू फंक्शंस आर हेड फंक्शन एंड टेल फंक्शन. हेड फंक्शन कैन बी यूज टू एक्सेस n number of elements, and tail function can be used to fetch n number of records from the bottom. So if we provide the value of n, so that many elements will be accessed from top or from bottom, and if we don't provide the value of n, so 5 number of elements will be accessed. Alright, now let us see one example which is given to us. You can see example number 16 on your screen. It is over here. Alright, so example number 16 देखते हैं. A series object tr data, ठीक है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका नाम है tr data. Now in this tr data it consists of total of 2500 elements. All right, यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पर 2500 एलिमेंट्स हैं. सो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम which will print the following details. So we have to write the code which will print following details. Which are the details? So we have to print first 100 records of data and last 5 rows of the data. Now if we want to print first 100 records of data, so definitely we would be using head function. And what will be our value of n? So our value of n will be 100. Now if we want to write the tail function, so what we have to use? So we have to use tail function, and we have to trace 5 number of values. So we can write 5, or if we will be leaving it blank also, then also 5 number of records will be accessed. So हमें यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट लिखना पड़ेगा. सो लेट अस सी व्हाट दे हैव डन. ये तो हमें पता चल गया कि ये करना पड़ेगा. इन्होंने कुछ और किया है क्या, हम ये देखते हैं यहाँ पर. तो देखो यहाँ पर इन्होंने import pandas as pd because we are using pandas, so definitely that will be the line, very first line that we actually write, and then you can see over here print tr data dot head function, and in bracket they have written value of n which is 100. So 100 records will be fetched from the top, and tr data dot tail function, so it will print 5 records from the bottom. So you can clearly see that head and tail function will be used in this way. Okay, now let us move further and see what all things we have with us. All right, now next, vector operation on series object is our next thing that we have to go in study. So vector operation means if you apply a function or expression, then it is individually applied on each item of the object. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर हम वेक्टर ऑपरेशन मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं. तो आप देख सकते हो जैसे कि हम OB2 यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, उस पर हम वेक्टर ऑपरेशन लगाकर देखेंगे. ठीक है, तो सीरीज ऑपरेशन अगर हमें सीरीज ऑब्जेक्ट पे अगर हमें वेक्टर ऑपरेशंस लगाने हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ हमें लीगल ऑपरेशंस बता रखे हैं कि कौन कौन से लीगल ऑपरेशंस हैं जो हम सीरीज
ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा हेड और टेल फंक्शन, और अब हम देख रहे वाले हैं वेक्टर ऑपरेशंस हम कौन कौन से लगा सकते हैं। तो देखो, वेक्टर ऑपरेशंस लगाने के लिए द लीगल ऑपरेशंस दैट वी हैव विथ अस आर प्लस, यहां पर आप देख सकते हो क्या है, प्लस, नेक्स्ट है इनटू, उसके बाद है टू दी पावर ऑफ, इसका मतलब होता है पावर में लेना, है ना। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, है ना। तो ऐसा ही लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे जो ऑपरेटर्स हमने देखे, ये सारे के सारे वेक्टर ऑपरेशंस की तरह काम में लिए जा सकते हैं। कैसे? तो चलो लेट अस सी विथ एन एग्जांपल। यहां पर देखो, इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट OB2, जो पीछे हमने देखा, ये OB2 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस OB2 ऑब्जेक्ट पे अब हम वेक्टर ऑपरेशंस अप्लाई करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, अगर इस OB2 पर मैं एक वेक्टर ऑपरेशन अप्लाई करता हूं जो कि है प्लस, तो प्लस के बाद मैंने वैल्यू लगा दी 2। तो जैसे ही मैंने प्लस के बाद वैल्यू लगाई 2, तो देखिए पीछे OB2 की वैल्यूज थी 1.5, 12.75, 24, 35.25 और 46.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब हमारा आउटपुट में जो एलिमेंट्स हैं, एवरी टाइम इन दोज एलिमेंट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऐड हो चुका है हर एक एलिमेंट की वैल्यू में। तो हम ऐसे वेक्टर ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर वैल्यूज को वेक्टर मतलब कि ईच सिंगल वैल्यू पर वेक्टर ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है। अगले में देखिए, यहाँ पर इंटू 3 किया हुआ है, तो डेफिनेटली व्हाट इट विल डू, इट विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय 3। नेक्स्ट इन्होंने बताया है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करके। तो अगर ग्रेटर देन 15 हम लगाते हैं, तो आप देख सकते हो जिनकी वैल्यूज ग्रेटर देन 15 थी, वहां पर आंसर आया हुआ है ट्रू, अदरवाइज आंसर आया हुआ है फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रू या फॉल्स में भी आंसर्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है पावर फंक्शन। तो यहाँ पर पावर फंक्शन भी इन्होंने यूज कर कर बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, OB2 इंटू 2। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे पहली वैल्यू क्या थी हमारी, तो पहली वैल्यू थी जैसे 1.5 थी ना, तो हमने लिख दिया 1.5 की पावर 2। ठीक, तो 1.5 की पावर 2 मतलब अगर हम 15 का स्क्वायर निकालें, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पर 2.25 विल बी द वैल्यू। सिमिलरली इन पर भी इन्होंने पावर ऑपरेशन लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं 2 की जगह 3 लिख देता, तो वो क्यूब निकालता 1.5 का, और जो भी वैल्यू आनी होती फिर वो आती। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट्स जनरेट किए जा सकते हैं, वेक्टर ऑपरेशंस मतलब यहाँ पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ भैया, रख दीजिए वहीं पे। आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एरिथमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अब एरिथमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अब हम समझते हैं, यहाँ पर हम एरिथमेटिक में क्या कर सकते हैं। तो एरिथमेटिक का सिंपल सा मतलब है कि हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने हैं, तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी सीरीज ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट मैथमेटिकल फंक्शंस अगर परफॉर्म करने हैं, मतलब यहाँ पर तो क्या किया हमने, किसी एक वैल्यू को ऐड किया था, है ना। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक OB के अंदर OB1 प्लस OB2 ये वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं दो सीरीज ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर कर भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इसको बोलेंगे एरिथमेटिक फंक्शंस टू बी अप्लाइड ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से एरिथमेटिक फंक्शंस, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वी आर प्रोवाइडेड सम एग्जांपल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 5
ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, OB1, OB2, OB3, OB4, OB5। अब क्या करके बताएंगे, यहाँ पर OB1 और OB2 को ऐड करना है तो OB1 प्लस OB2, ठीक है। सिमिलरली इनमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, डिवाइड करना है तो डिवाइड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस करना है तो माइनस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑपरेशंस यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स पर, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स पर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे पहला एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है OB1 इंटू OB3, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आउटपुट उसमें मिला। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं OB1 डिवाइडेड बाय OB3, तो जो भी वैल्यू आनी थी वो वैल्यू अब यहाँ पर आ चुकी है। OB1 प्लस OB5, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। OB2 प्लस OB5, यहाँ पर भी एडिशन का इन्होंने बताकर रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम एडिशन भी कर सकते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। और वेक्टर ऑपरेशंस तो हमने देखे ही कि हम वेक्टर ऑपरेशंस भी इन पर परफॉर्म कर ही सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हमें बताई हुई हैं। अब देखो कभी कभी क्या होगा, अभी तो चलो ठीक है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, जैसे कि अगर आप OB1 और OB3 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर जैसे OB1 और OB3 हमने लिया था, तो आप देखो OB1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो OB1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, OB3 में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5। सो व्हेन दे बोथ वेयर हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं थी कि उसने 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रही है। सिमिलर सेम थिंग गोज फॉर दीज, इन सब में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तो यहाँ पर भी वैल्यू सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आ गई। बट अगर मैं ऐसा कुछ करूं, देखिए ठीक है, यहां पर देखो OB1 जो है, OB1 कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, OB4 कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, है ना, दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं अब क्या होगा, तो अब हम देखते हैं अगर मैं ऐसे दो सीरीज ऑब्जेक्ट्स को ऐड करूं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है तब क्या होता है। तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल से उन्होंने बताया हुआ है, तो यहां पर हम देख सकते हैं इफ वी ऐड two objects which are not having same number of elements, so OB1 plus OB4, तो यहाँ पर जितने में ऑब्जेक्ट्स में एडिशन किया जा सकता है उतनों में तो एडिशन कर दिया जाएगा। बची हुई जो आपकी वैल्यूज रहेंगी उन बची हुई वैल्यूज के लिए यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है नैन। दैट मीन्स नॉट अ नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि OB1 प्लस OB4 कर रहे हो तो OB1 की वैल्यू प्रिंट कर दे, नहीं, वो यहाँ पर नैन प्रिंट करेगा क्योंकि वहाँ पर एडिशन हो ही नहीं पाया, वहाँ पर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो पाया, इसीलिए यहाँ पर ये नैन वैल्यू प्रिंट करेगा इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द ओनली वैल्यू विच इज गिवन इन द OB4, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यह ध्यान रखना है कि एडिशन करते टाइम अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडिशन पॉसिबल है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया, OB1 प्लस OB2। अब देखिए OB1 प्लस OB2 जब किया तो OB1 प्लस OB2 करने पर यहाँ पर देखो आंसर सब में ही नैन आया है, ठीक है। अब सब में नैन क्यों आया, अब ये समझते हैं, ठीक। अब OB1 प्लस OB2 में सब में आंसर नैन क्यों आया, तो अब थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर तो एलिमेंट्स जितों का इंडेक्स उसको मिला, तो कितों का मिला था, 0 1 2 3 4 इंडेक्स मिल गए थे, तो चारों इंडेक्स पर उसने वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। बट बचे हुए 3 के लिए उसको इंडेक्स मिला ही नहीं दोनों में, तो उसने क्या किया, तो उसने वहाँ पर नैन प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं OB1 और OB2 को ऐड कर रहा हूँ तो देखो OB1 हैज़ इंडेक्सेस टू बी, देखो OB1 में क्या क्या इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4, और OB2 में क्या इंडेक्सेस है, तो A B C D E, ठीक। नाउ इफ आई ऐड OB1 एंड OB2 तो आप देख सकते हो देयर आर नन ऑफ द इंडेक्सेस विच आर मैचिंग, ठीक है। जब यहां पर एक भी इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है तो वो इनके लिए भी वैल्यू देगा नैन
और इनके लिए भी वैल्यू देगा नैन। तो टोटल 5 + 5 10 वैल्यूज आएंगी विच विल बी हैविंग द वैल्यू टू बी नैन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 वैल्यूज आई हैं एंड ऑल द 10 वैल्यूज आर सपोज टू बी नैन, क्योंकि इंडेक्सेस मैच नहीं हुए। ठीक है, जब हम एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इंडेक्सेस का मैच होना बहुत ज़रूरी है, और वो यहाँ पर नहीं हुआ, इसीलिए ये एरर यहाँ पर आई है। So we have two examples with us. Example number 17 एंड एग्जाम्पल नंबर 18। मैं ये एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। बट ये एक्चुअली आई थिंक कि ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पर वेक्टर और अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाए हुए हैं इन्होंने, सो आई बिलीव कि आपको समझ में आ जाएगा। सो वी आर ऑलरेडी अप with the time. So this is it for today's class, students. I will be sharing the screenshot of this page so that you can solve it for as an homework. So thank you, students. See you in the